Hello dear student, welcome again to RAMANUJAM School of Studies. In this series, we are discussing about the complex number class 11th. ये जो लेक्चर है ये लेक्चर थर्ड है जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, इसके बाद डेफिनेशन, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। Today we will discuss all the concept written here, that is properties of multiplication of complex number, modulus of a complex number, conjugate of a complex number, argument of a complex number and principal value of the complex number. Let us start our discussion with properties of multiplication of complex number. सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो अगर Z1 and Z2 are any two complex number, then Z1 into Z2 is also a complex number। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि Z1 is a complex number which is written as Z1, this is equal to X plus I Y1 suppose, and Z2 is another complex number, so Z2 is X2 plus I Y2. So this is X1 I Y1 plus and Z2 is X2 plus IY2. So Z1 into Z2 अगर हम इसे कैलकुलेट करें, so we can write here X1 plus IY1 into X2 plus IY2. So अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, so X1 into X2, this is X1 into X2 plus I X1 Y2 plus I y1 x2 plus I into I, that is I square. So we can write here I square y1 into y2, and as we know that I square is equal to -1, so this is minus y1 into y2. So we can write here x1 x2 minus y1 y2, okay, plus I into x1 y2 plus y1 x2. So this is the multiplication of two complex number, and when two complex number is multiplied, we get the complex number Z1 and Z2, which is in the form of A plus I B, where A is the real part of Z1 into Z2, that is X1 into X2 minus Y1 into Y2, and B is the imaginary part of the Z1 and Z2, that is X1 Y2 plus Y1 X2. Now here we see that Z1 into Z2 can be represented as A plus IB. So Z1 into Z2 is also a complex number. So here we can say that if Z1 and Z2 are any two complex number, then Z1 into Z2 is also a complex number. This is the closure property of the complex number, which is very important, and you should remember this. Now moving to the second slide, that is the multiplication of complex number. The another property is commutativity. तो कम्यूटेटिविटी में क्या हम देखते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 है, तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1 होता है। जैसे कि अगर हम लिखें कि Z1, सपोज Z1 दिस इज इक्वल टू X1 प्लस I Y1, राइट, एंड Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस I Y2। Z1, तो यहां से हम लोग Z1 इंटू Z2 अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में फाइंड किया, सो दिस इज इक्वल टू वी हैव X1 X2 माइनस I Y माइनस दिस इज Y1 इंटू Y2 here not I, एंड प्लस I इंटू X1 Y2 प्लस Y1 X2। ये हमने फाइंड किया था प्रीवियस स्लाइड में Z1 इंटू Z2। अगर हम Z2 इंटू Z1 फाइंड आउट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा, X2 प्लस I Y2 इंटू X1 प्लस I Y1 करना होगा। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, X2 इंटू X1 प्लस I इंटू X2 इंटू Y1 प्लस I इंटू Y2 इंटू X1 plus I into I is I square, so this is -1, and this is Y1 into Y2. So further we can write this as X1 into X2 can be written as X1 into X2, and this is minus Y1 into Y2, right, into plus here we can write I into X2, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं X1 Y2
प्लस y1 x2 जो कि z1 इंटू z2 के बराबर है। तो रूल ऑफ कम्यूटेटिविटी फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज z1 इंटू z2 दिस इज इक्वल टू z2 इंटू z1। तो इस चीज को हम फर्दर क्वेश्चन में यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है, तो आपको ये याद होनी चाहिए और इसे यूज करना है हमें। नेक्स्ट स्लाइड है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम लोग देखते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि अगर z1 इंटू z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके मल्टीप्लिकेशन को z3 से मल्टीप्लाई किया, तो सपोज मान लेते हैं z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1, ओके, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2 एंड z3 this is equal to x3 plus i y3। so अगर ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 है, तो अगर हम पहले z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें, इसके बाद इसे हम z3 से मल्टीप्लाई करें, तब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट z1 को पहले छोड़ देंगे और z2 और z3 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर z1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ये दोनों रिजल्ट सेम होगा। तो ऐसे लॉ को, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज द एसोसिएटिविटी लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा 1 प्लस आई जीरो सच दैट फॉर ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई इंटू 1 प्लस आई इंटू 0 इज इक्वल टू x प्लस वाई। यस, दिस इज वेरी clear that if we have a complex number z and this is equal to x plus iy, अगर हम दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं z1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस i इंटू 01 है, सो वी कैन राइट हियर z इंटू z1, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस i0 इंटू x प्लस i1। ओके, सो वी कैन राइट हियर 1 into x plus iy, okay, plus I into 0 into x plus iy। चूंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, सो हमारे पास x plus iy आ जाएगा। सो z1 is such complex number which is multiplied by z, we get the same complex number that is z। so z1 that is 1 plus I dot 0, this complex number is the आइडेंटिटी दैट इज मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी फर्क नहीं आएगा। सो दिस इज आइडेंटिटी, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द इनवर्स दैट इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे x प्लस आई वाई मान लेते हैं, राइट, और x प्लस आई वाई डज नॉट इक्वल टू 0 प्लस आई जीरो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना तो x 0 होना चाहिए और ना ही y 0 होना चाहिए। x प्लस आई वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज हियर इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0 देन डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो 0 एंड डिविजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा, x माइनस आई वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसके कारण इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन का, अगर हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 1 हो जाएगा। देखते हैं, तो x है हमारे पास और आई वाई है, सो दिस इज x इंटू आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसे अगर हम x माइनस आई वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे this multiplication is equal to x plus iy into, we can write here x divided by x square plus y square minus I y divided by x square plus y square. So on further multiplication we can write here x into x divided by x square plus y square. So we can write here, see here, this multiplication is x square divided by x square plus y square, okay, plus y square divided by x square plus y square। क्यों?
क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आई वाई से इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर इज -1, सो आई -1 इंटू आई स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर। सो दिस इज अ रियल पार्ट आ गया, और इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास आ जाएगा आई इंटू माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस होकर 0 हो जाएगा, और ये अगर हम ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, वही कट के 1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर 1 प्लस 0 इंटू आई। सो 1 प्लस 0 आई हो गया। ये कब होता है कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई को x माइनस आई वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई is the multiplicative inverse of the complex number x plus I y. So this is the multiplicative inverse. तो इस तरह का क्वेश्चन जब हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि आप फाइंड करना है कि x प्लस 3 प्लस 4i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। फिलहाल अभी हम थ्योरी देख रहे हैं। जब हमारा एक बार बेसिक थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे और हायर लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 है तो पहले अगर हम z1 z2 को ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें z1 ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट और z1 इंटू z2 से z1 इंटू z2 और z1 इंटू z3, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम x1 प्लस आई y1 एक z1 ले लें, ठीक है, so this is z1, z2 is x2 plus iy2 ले लें और z3 is x3 plus iy3 ले लें। तो सबसे पहले हमें इस दोनों को ऐड करके फिर z1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, z1 इंटू z2 फाइंड करेंगे और z1 इंटू z3 फाइंड करेंगे और उसको जोड़ देंगे, तब जो रिजल्ट आएगा तो ये दोनों रिजल्ट बराबर होगा। आप इसे होमवर्क में रख लें, इसे करके देखिएगा, दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इस तरह के जो प्रॉपर्टीज फॉलो होते हैं, इस तरह के प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस में पूछे जाते हैं या एडवांस में पूछे जाते हैं या फिर स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। सो हियर वी सी दैट द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy is denoted by mod of x plus iy and is defined as mod of x plus iy is equal to under root x square plus y square। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है। क्यों? क्योंकि जो मॉडुलस होता है, मॉड्यूलस, ये बेसिकली डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस, जैसे हम कहते हैं कि मॉड ऑफ 3, इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, 3 है। दैट इज अगर ये हमारा ओरिजिन हो गया O, तो यहां से 3 यूनिट राइट पे, सो दिस इज मॉड ऑफ 3। अगर हम मॉड ऑफ -3 कहें तो डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम ओरिजिन, सो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। सो बेसिकली मॉडुलस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे x और y एक्सिस को ड्रॉ करें, ठीक है, और हमने ये देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर पेयर में होता है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z, जिसका ऑर्डर पेयर x और y है। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा z का, दैट इज मॉडुलस। ओके, सो दिस इज नॉन नेगेटिव क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ सी हियर, अगर ये हमारा रियल एक्सिस x है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस y है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इमेजिनरी एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होगा, x यूनिट डिस्टेंस पे, और सो दिस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, चूंकि हमारा ये y जो है इमेजिनरी पार्ट है। नाउ सी हियर, अगर हम इसे a कहें, इसे हम b कहें और इसे हम o कहें, सो ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम OA का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो OA स्क्वायर दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो
OA is the distance of complex number Z. So we can write here mod of Z, क्योंकि डिस्टेंस हम किसे डिनोट करते हैं, मॉड से. सो मॉड ऑफ Z स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो mod of Z is equal to अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल कि Z इज इक्वल टू -3 प्लस 4i है, तो मॉड ऑफ Z क्या हो जाएगा. सो मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर, दिस इज 9 एंड 4 का स्क्वायर 16. सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 25. सो दिस इज 5. तो मॉडुलस में आपको ये चीज करना है क्वेश्चन में. बाद में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट. तो इस चीज से हम लोग यहाँ पे मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं. द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iy is denoted by bar of x plus iy and is defined as x plus iy is equal to x minus iy. So suppose here अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, सो मान लेते हैं कि 4 प्लस 3i है, राइट. तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू 4. कॉन्जुगेट की डेफिनेशन में क्या है कि रियल पार्ट सेम रहता है बट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है. सो दिस इज -4i. नाउ सपोज दिस इज हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा ऑर्डर पेयर है z का. सो z इज x एंड y. चूंकि हम देखते हैं कि साइन कन्वेंशन में यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है. यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों x एंड y निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा x पॉजिटिव और y निगेटिव होता है. चूंकि यहाँ पर डेफिनेशन में x हमारा पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, और जो इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, सो पॉजिटिव निगेटिव हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि ये जो y है ठीक इस z का मिरर इमेज जो होगा एज मिरर x को, अगर हम मिरर x एक्सिस को और मिरर ले लें तो जो आएगा z. सो दिस इज z बार. क्यों? क्योंकि इसका x और माइनस y हो जाएगा. सो z का मिरर इमेज हो जाएगा z बार. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, z प्लस z बार करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और 3i माइनस 3i ये 0 हो जाएगा. तो ये एक प्योरली रियल नंबर होगा. सो for any purely real number क्या होगा, z plus z bar, this is equal to real part. So we can say here z plus z bar is a, that is the real part of z. इसका मतलब क्या हो गया कि इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो गया z plus z bar में. ओके, अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें सो z माइनस z बार, इस केस में हमारा 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 और ये प्योरली इमेजिनरी नंबर आ जाएगा डेट इज 6i. तो इस केस में हमारा रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 हो गया, z इज इक्वल टू 0 एंड इस केस में हमारा रियल पार्ट जो हो जाएगा z का 0 हो जाएगा. सो वी कैन से हियर प्योरली रियल के केस में हमारा z इज इक्वल टू z बार होता है. सो दिस इज द केस फॉर प्योरली रियल. सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्योरली रियल. ओके, और जब हमारा z इज इक्वल टू माइनस z बार होगा तो उस केस में ये पूरा इमेजिनरी होगा, z इज इक्वल टू माइनस z बार. तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा प्योरली इमेजिनरी होगा. इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्योरली इमेजिनरी के केस में क्या होगा और प्योरली रियल के केस में क्या होगा. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं. सो आपको ये ध्यान रखना है कि z प्लस z बार, सो दिस इज इक्वल टू 8, दैट इज दिस इज रियल पार्ट ऑफ z. z माइनस z बार इज इक्वल टू इमेजिनरी, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. सो आप यहीं से देख लीजिए कि इमेजिनरी पार्ट जब 0 होगा तो प्योरली रियल होगा. ओके, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो प्योरली रियल होगा. इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, z माइनस z बार, सो दिस मस्ट बी 0. सो z इज इक्वल टू z बार. सो दिस इज द केस फॉर प्योरली रियल. सिमिलरली जब रियल पार्ट 0 होगा तो
जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी होगा। रियल पार्ट जीरो कब होगा, जब z प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, दैट इज z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। इस केस में ये प्योरली इमेजिनरी होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फर्दर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। क्या है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड? सो इसे समझने से पहले हम लोग एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसे हम x और y कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर में है। अब ये देखिए क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बनाएगा थीटा। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के लिए अगर cos थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर दोनों ये क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो दोनों इक्वेशन को, तो उस केस में जो थीटा होगा दैट इज एम्पलीट्यूड, दैट इज दिस एंगल इज एम्पलीट्यूड। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, सी हियर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर z इज इक्वल टू -1 माइनस आई, ठीक है, सो here x is equal to -1 and y is equal to also -1. So we can write here cos theta this is equal to minus and x divided by under root x square plus y square। x कितना -1 और x square plus y square कितना हो जाएगा under root 1 square plus 1 square that is 2। So cos theta is equal to -1/2 and sin theta this is equal to -1 by again √2 चूंकि y भी यहाँ पे -1 है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जब cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 है तो थीटा जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3π/4, सी हियर 3π/4 और 5π/4 हो जाएगा और बहुत सारे एंगल आएंगे थीटा के। सिमिलरली sin थीटा इज -1/√2 है तो इस केस में हमारे पास 5π/4 एंगल जो आएगा एंड 7π/4 आ जाएगा। अब इस दोनों कंडीशन में हम देखते हैं कि दोनों इक्वेशन कौन सा थीटा सेटिस्फाई करता है, दैट इज 5π/4। सो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 5π/4, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग जनरल लिख सकते हैं कि जनरल थीटा क्या होगा। सो जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z, we can write general value of argument z। so this is equal to हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू क्या है 5π/4 और हर रोटेशन पे ये आएगा तो यहाँ पे हमें 2n पाई लिखना होगा। सो 2n पाई प्लस π/4 दिस इज द जनरल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। एग्जाम्पल एक और लेके हम लोग क्लियर करते हैं। मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i, -1 प्लस √3i, इसका हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है। सो हियर रियल पार्ट x इज इक्वल टू -1, इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू √3। अब पहले हम निकालेंगे यहाँ पे cos थीटा। सो cos थीटा दिस इज इक्वल टू वी हैव x डिवाइड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो x इज -1 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, y स्क्वायर √3 का 3, सो 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, सो दिस इज 1/2। सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से हम लोग थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। सो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2π/3, पहला तो ये हो जाएगा 2π/3 और 4π/3। ओके, सिमिलरली अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें सो साइन थीटा इज इक्वल टू y दैट इज √3/2। सो यहां से हमारे पास जो थीटा आ जाएगा सो दिस इज इक्वल टू π/3 ओके एंड 2π/3, ये दो एंगल हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा एंगल दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। सो 2π/3 एंगल इज सेटिस्फाइड बाय बोथ द इक्वेशन दैट इज cos थीटा एंड sin थीटा। सो theta is equal to 2π/3, this is the argument of the complex number। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझ में आ गया होगा।
अब हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल वैल्यू? सो सी हियर, cos theta is equal to x over under root x square plus y square and sin theta is equal to y divided by under root x square y square। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या निकाल लिया, थीटा की वैल्यू आपने निकाल लिया, ये आर्गुमेंट है, और जनरल वैल्यू के लिए आपको 2n पाई, ठीक है, प्लस प्रिंसिपल वैल्यू करना होगा जिसे भी हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। चूंकि हमारे पास देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग टू इक्वेशन, बहुत सारे होंगे, तो वो एंगल जो कि माइनस पाई से पाई के बीच में होंगे, ठीक है, माइनस पाई से पाई के बीच में होंगे, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, ओके, या कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम z ले लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज -1 माइनस आई। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जो आर्गुमेंट आया था वो हमारा, दिस आर्गुमेंट इज आर्गुमेंट ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। बट अब हमें ये 5 पाई बाई 4 जो है पाई से बाहर है, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। सो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमारा जो थीटा होना चाहिए माइनस पाई से पाई होना चाहिए। तो यहाँ पे दो रूल इंपॉर्टेंट है कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z ग्रेटर देन पाई, पाई से बड़ा होगा, तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, सब्सट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास 5 पाई बाई 4 है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z अगर हम लिखना चाहें, प्रिंसिपल वैल्यू, तो 5 पाई बाई 4 में से हमें 2 पाई को सब्सट्रैक्ट करना होगा। सो दिस इज इक्वल टू -3 पाई बाई 4। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा रूल हो गया हमारे पास कि अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन माइनस पाई होगा, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, करना होगा, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ऐड करना होगा 2 पाई टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो उस केस में हमें, जैसे कि अभी हमने देखा कि यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में, इसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू इस स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास 2 पाई बाई 3 आया, राइट। सो 2 पाई बाई 3 आ गया। सो 2 पाई बाई 3 इज इन बिटवीन ऑफ पाई एंड माइनस पाई एंड पाई। सो 2 पाई बाई 3 इज प्रिंसिपल वैल्यू। अगर ये पाई से कम होता, माइनस पाई से कम होता, तो वहां पे हमें 2 पाई को ऐड करना होता। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट को निकाल सकते हैं, राइट। सो दिस इज some examples of the argument. So today we are discuss about many things, that is properties, modulus, conjugate, argument and principal value of the argument। कैसे हम principal value निकालते हैं, argument क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, चूंकि हम लोग मॉडुलस निकालना सीख गए और आर्गुमेंट निकालना सीख गए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलर फॉर्म को डिस्कस करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन का सेट करेंगे, जो कि अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन के लेवल को IIT JEE और एडवांस तक के लेवल तक लेके जाएंगे इसे, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ऐसा लग रहा हो कि आपको ये फायदा पहुंचा रहा है, तो कृपया करके दूसरे को भी इसे शेयर कीजिए, जिससे कि उसे भी फायदा हो। और हाँ, शेयर करने के बाद आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, जय हिंद।